नमस्कार। इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। 16 से 27 मई तक 76वां कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर से कलाकार, मॉडल, महान फिल्म निर्माता और निर्देशकों का जमावड़ा। कैन्स फिल्म महोत्सव इस बार बेहद खास है, खासकर भारत के लिए। फिल्मों के इस महान उत्सव में जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं, तो भारतीय सितारों का जलवा भी कुछ कम नहीं है, चाहे बात भारतीय सिनेमा की हो या फिर भारतीय पेविलियन की। आज कैन्स फेस्टिवल का 5वां दिन है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फेस्टिवल में और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास रहा। नमस्कार, भारत एट कान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। जैसे जैसे कान फिल्म फेस्टिवल आगे बढ़ रहा है, कान की गलियों की रौनक और बढ़ती जा रही है। कौन से वो सितारे हैं जो रेड कारपेट पर नजर आ रहे हैं और भारतीय पवेलियन में भारत की सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए किन विषयों पर मंथन हो रहा है, तमाम वो खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक का सिलसिला। भारत की फिल्म इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने और गुणवत्ता को और सुधारने के लिए भारत की सरकार ने कई देशों के साथ कुछ समझौते किए हैं, ताकि जिन देशों के साथ समझौते किए हैं उनके फिल्म मेकर्स और भारत के फिल्म निर्माता आपस में मिलकर काम कर सकें और न सिर्फ भारत बल्कि तमाम उन देशों के साथ भी फिल्म बाजार को और आगे बढ़ाया जा सके। इसको लेकर एक विशेष सत्र इंडिया पवेलियन में आयोजित हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस सत्र में मौजूद थे। क्या चर्चाएं हुई हैं इस सत्र में, आइए आपको सुनाते हैं। Our government is concerned about the co-production. For that, almost 16 countries are entered the treaties and the agreement. Also, almost here all countries are entered this agreement. So I hope another countries are also, it is in the pipeline. So our government, again I want to mention that our government is almost supporting to the industry. Our states are supporting, some states from Madhya Pradesh or some of states from Maharashtra. They are also supporting for the shoot in India. We have an incentive structure called the New Zealand Screen Production Grant, and this is a cash rebate structure. It's not a tax credit. And there are two strands to it. There's a 20% incentive, and that is for international production coming into New Zealand. They just need to spend a certain amount of money, and then they receive a 20% cash rebate following delivery. And on the co-production side and the domestic New Zealand side, we have a 40% incentive, which is a cash grant structure. It applies equally to film and to television. And the way it works is that it is effectively a cash grant that is paid out to the New Zealand producer that then converts to their equity in the film or the TV show. We have had one co-production so far with India called Beyond the Known World, and that production accessed a combination of our incentive structure, the 40% incentive, and it also accessed our equity as a film fund. Before the pandemic, I think we had 4 or 5 Indian productions in Sweden, just coming for the locations, for the culture. Like you said, they're wanting something different, to talk about virgin locations. They can find things that they haven't seen before, and that has been important. But then I also found that there are quite a few stories that involve both Sweden and India that are perfect for co-productions, that I would like to find a way to promote to Indian producers and Swedish producers to actually produce, which would be fantastic. We have a 30% incentive just if you come in as an inbound, not as a co-production. So that's 30% both big and little screens. And like Canada and like India, states stack on top of it. So you can get between 8 and 15% on top of that 30%. That's just as an inbound. Then obviously what the real goal though for the government would be, is because we're a cultural agency, would be to find those things that really work together, that is promoting and helping both creative sides.
So we love inbounds, but that's the real goal, I think, for the government. We have a very large Indian diaspora living there. Obviously, there's a huge Indian diaspora around the world, so you can take that story elsewhere. So it's also very important to Australia, the government at the moment, that we tell stories that reflect Australia looking as she actually is. And Australia has a huge diverse population, and so I think there's a lot of opportunity there to play on that. भारत अपने टैलेंट को एसेट मानता है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत के टैलेंट को तैयार कर इस लायक बनाया जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना सकें। इंडिया पवेलियन की अगर बात की जाए तो उस पर एक विशेष सत्र आयोजित हुआ। कौन वो पैनलिस्ट थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इस सत्र में शामिल हुए, आइए आपको दिखाते हैं। In the entire film development, the talent is one of the most important components. So if you nurture the talents well, your outcomes and films will be definitely better. So we wanted to utilize the platform of the festival, and we wanted to use this 75th year for starting a new thing in terms of talent development. So the first year we started all alone. I think the NFDC team did a fairly good job. We sort of, sought applications from all across the country, and we selected 75 creative minds, and we utilized this festival and the Film Bazaar platform to train them into various aspects of filmmaking, whichever they were pursuing. The journey started off because of an idea which our Honorable Minister gave, and then it also coincided with our 75th year. But I think it has to evolve, and it has also to multiply in times to come. So we'll think around that and build it further. I think India has an amazing and deeply rooted tradition of storytelling. Bollywood has been kind of all by itself this massive and amazing center of creativity. I'm a member of the Academy of Motion Pictures, so it's very interesting to see our winning song that I think if they revealed the votes, Natu Natu would have won by an enormous amount. It was such an amazing and popular piece of creativity. What I really find inspiring about initiatives like this, it's not just about working on a film, although of course that's a great thing to work on. It's also about making mistakes, and I think making mistakes and learning from them, and as the people in the clip also mentioned, like having that safe space to experiment with it, and the fun and joy about it, and collaborative effort, I think, looks fantastic. And we also have a couple of programs where we incubate ideas together, we pitch them, we work on marketing and training sessions together, so we see if the idea possibly has potential internationally or even in your own local industry. And it was actually very good to see it, so because I thought for everyone, you here in the audience and for us, so we know how films are made, but to see how the people came together and how the spirit of that thing came through, even through a video, I can imagine it was way more fun when you were on the spot. Is very important, and also the thing that probably touches most and connects most with what we want to achieve at Berlinale Talents. We don't do a challenge, we don't do films while they're there. It's a gathering of emerging film professionals, 200 from all over the world in Berlin every year. यही वो रेड कार्पेट है कान का, जिसकी चर्चाएं दुनिया भर में होती हैं जब दुनिया भर के सितारे इस रेड कार्पेट पर नजर आते हैं। भारत की सपना चौधरी भी इस रेड कार्पेट पर चली हैं। हरियाणा से निकलकर इस रेड कार्पेट तक का सफर कैसे उन्होंने पूरा किया, और इस रेड कार्पेट पर चलने के बाद क्या कुछ कहा सपना चौधरी ने डीडी न्यूज से, आइए वो आपको सुनाते हैं। कहते हैं सपना देखना चाहिए और जागते हुए सपना देखना चाहिए, और जागते हुए जो सपना हम देखते हैं उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। भारत की एक सपना है जो करोड़ों दिलों की धड़कन है। हरियाणवी नृत्य की अगर बात की जाए, मंचों से कान के रेड कारपेट तक पहुंची हैं। सपना चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सपना, हरियाणवी गानों के मंचों से कान का रेड कारपेट तक आना, क्या सपना पूरा हुआ?
सच्ची बताऊं तो मैंने ये सपना देखा ही नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं मेरी टीम का और राहत सर का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करूंगी कि उन लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, ये पूरा हो पाया है। लेकिन सपना नहीं देखा था, मतलब मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं रेड कारपेट पे वॉक कर रही हूँ। रीजनल से निकलकर, हरियाणा जैसे शहर से, जगह से निकलकर और यहाँ तक पहुँचना एक कलाकार के लिए कितनी प्राउड का मोमेंट होता है, और दूसरी बात यहाँ तक आने के लिए मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो देखिए, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आप स्टार बन गए, आप सक्सेसफुल हो गए, क्या पूरा हो गया, आपका स्ट्रगल टाइम बताइए। तो मुझे लगता है हर इंसान का स्ट्रगल टाइम चलता रहता है, स्ट्रगल टाइम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़रूरी है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अचीवमेंट्स पे ध्यान दीजिए, हमने इतना स्ट्रगल किया, अच्छा हमें ये मिला, ये स्ट्रगल किया हमें ये मिला। तो बस वही चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ था। मैं बस मेरे काम पे ध्यान देती हूँ, जो करना है वो करती हूँ। जहाँ मेरा बस मेरे दिल से आवाज़ आनी चाहिए, यार यहाँ दिल कर रहा है, हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, तो मैं वो करती हूँ और उसका पेबैक मुझे गॉड देगा, और वो दे भी रहे हैं। तो सपना, जब आपने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की अपनी और लोगों ने देखा, लोगों को जिनको पता नहीं था कि सपना चौधरी कान में है और रेड कारपेट पर चल रही हैं, तो एकदम हलचल मच गई। वो जो ड्रेस आपने पहनी थी, क्या थी वो ड्रेस और क्या खासियत? क्योंकि बड़ी जैसे कहें कि खूबसूरत आप उसमें लग रही थी और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका नज़र आ रहा था। हाँ, कॉन्फिडेंस तो भरपूर था, अभी भी है कॉन्फिडेंस कहीं नहीं हिलेगा। बाकी मेरी टीम को डर लग रहा था। आप डर तो नहीं जाओगे? मगर मैं क्यों डरूंगी? मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो स्टेज पे 4-4, 5-5 लाख पब्लिक देखती है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं पूरी हिम्मत में हूँ, मुझे जो करना है वो मैं बहुत बहादुरी से और बहुत गट्स के साथ करूँगी, और वो मैंने किया। तो बड़ा मज़ा आया मुझे रेड कारपेट करके, कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन हाँ, जब मैंने फ़ोटोज़ देखी, मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि रेड कारपेट पे वॉक करना मतलब मेरे थ्रू पूरा हरियाणा रिप्रेजेंट करना, पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि कोई कह रहा था आप रेड कारपेट पे चले हो, कैसा लगा? तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, नहीं यार मैं नहीं चली हूँ रेड कारपेट पे, मैं नहीं, पूरा हरियाणा, हर वो आर्टिस्ट चला है जो वहाँ 25-25 साल से, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि अगर वो स्टार्ट नहीं करते हरियाणा में काम करना, तो मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। मुझे तो काम करते ही 12 से 15 साल हुए हैं, 15 साल हुए हैं, 16 साल हो गए, 16 साल हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैं इतना कुछ कर सकती थी उन लोगों के बिना। तो पहला हक तो उनका ही बनता है, हर आर्टिस्ट का जिसने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है, हर उस राइटर का, हर उस म्यूज़िक का, हर उस लाइट मैन का, मेकअप मैन का, जिसने पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को बिल्ड किया है। और मैं एज अ आर्टिस्ट, एज अ हरियाणवी आर्टिस्ट आज पूरे इंडिया को रेड कारपेट पे प्रेजेंट कर रही हूँ। इंडिया पवेलियन में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ कई सत्रों पर चर्चा, कई विषयों पर चर्चा हो रही है, और एक सत्र हुआ शी शाइन को लेकर, भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका और किस तरीके से महिलाएं भारतीय सिनेमा में अब आगे बढ़ रही हैं और एक युग को बदलता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। आप चूँकि एक हरियाणा से आती हैं, बहुत ऐसी जगह से आती हैं जहाँ लड़कियों का निकलना इतना आसान नहीं, इस पर कई बार आप चर्चा भी कर चुकी हैं। आपको लगता है अब भारत में महिलाओं की भूमिका सिनेमा जगत में एकदम बदलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आप हरियाणा में भी देखेंगे तो काफ़ी फीमेल राइटर भी आ रही हैं, फीमेल डायरेक्टर भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप एज एन मॉडल, एज एन एक्ट्रेस काम कर रहे हो तो ही आपकी भूमिका है, नहीं, पीछे बहुत है। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जो आजकल फीमेल आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आपकी लाइन में भी कितने फीमेल्स हैं, तो है हर जगह एक नारी सब पे भारी तो भूमिका तो देखिए हर जगह है एक नारी की, नारी शक्ति मैं कहूँगी कि भाई है। सच्ची में मुझे लगता है ये कि मेल और फीमेल एक ही बोलते हैं ना, तराजू के दो हिस्से हैं, तो ये इसके बिना अधूरा है, ये इसके बिना अधूरी है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ों में एक लड़की इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, जहाँ मुझे लगता है कि एक आदमी हो वहाँ तो क्विट कर देगा। औरत नहीं करती, मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे जिस्म में आखिरी खून का कतरा है, मैं जब तक लड़ूंगी, तो मैं क्विट नहीं कर सकती। आप क्विट नहीं कर सकती, लेकिन सपना आपने हिम्मत दिखाई, आप हरियाणा से निकली और मतलब वहाँ आपने काम किया और उसके बाद आज कान तक आप मौजूद हैं, कई और देशों में आप पहुँचती हैं। समाज जो अब बदल रहा है, इसको कैसे देखें? समाज बदल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए। बदलता हुआ समाज आगे की जो हमारी जनरेशन है उनको काफ़ी हेल्प करेगा हर चीज़ में, XYZ जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है इतना भी नहीं बदलना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बदलो लेकिन थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। जैसे रिस्पेक्ट हमेशा बड़ों की रहनी चाहिए, अदब हमेशा रहनी चाहिए, और एज एन लेडी मैं कहूँ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कपड़े कैसे भी पहनो पर आप बड़े सुंदर लगो। सुंदर और सेक्सी लगना दोनों एक अलग अलग पार्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो, मैं सुंदरता को चुनूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत रहनी चाहिए, यूँ रहनी चाहिए। सपना, इस कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की फिल्मों को इसलिए भी सराहा जा रहा है, और जब से हम यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं, चर्चाएं ये हैं कि भारत की फिल्मों में कल्चर दिखता है और भारत की फिल्मों में रिश्ते दिखते हैं। आपको हमने जब भी परफॉर्म करते देखा है, आप एकदम ट्रेडिशनल लुक में रहती हैं, और वो ट्रेडिशनल लुक चूँकि कभी कभी जब भारत की फिल्मों में दिखता है तो वो दुनिया भर तक पहुँचता है। कितना ज़रूरी मानती हैं आप, क्योंकि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। हमारे देश का कल्चर अगर हम उसको आगे लेकर जाएंगे, जो आप भी फॉलो करती हैं, कितना ज़रूरी होता है इस इंडस्ट्री के लिए? ये इंडस्ट्री के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री भी समाज का एक हिस्सा है। मैं भी कल को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहती हूँ वो मुझे अभी से कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको देखते हुए कि तू मेरी इज़्ज़त कर, लेकिन वो इज़्ज़त मुझे मांगने से नहीं चाहिए, उसके मैं लायक होनी चाहिए हूँ। तो मैं खुद को प्रिपेयर करूँगी उसके लिए। तो ऐसे ही सिनेमा जगत को भी ये देखकर ही करना चाहिए सब कुछ कि कल को आपके बच्चे या आने वाली जनरेशन आपको किस नज़रिए से देखे। आप हर चीज़ बनाइए, नो डाउट हर चीज़ दिखानी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए। लड़कियों को भी काफ़ी चीज़ों में जागरूक होने की ज़रूरत है, लड़कों को भी काफ़ी चीज़ों में जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये देखना पड़ेगा कि वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी हमने गुंडागर्दी का गाना बना दिया, लेकिन काफ़ी बच्चे उनसे इंस्पायर होकर गुंडागर्दी में उतर गए। फिर तो थोड़ी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। काम कमर्शियल बेसिस पे काम करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मुझे भी काफ़ी गाने ऐसे करने पड़ते हैं जो भाई कमर्शियल बेसिस हैं, मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि एंटरटेनमेंट को हमेशा एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखो। सपना, भारत की कोशिश है इस कान में कि जो भारत का टैलेंट है रीजनल लेवल पे अगर देखें, चाहे वो आपने शुरुआत में कहा कि मेकअप आर्टिस्ट हो, गाने लिखने वाले लोग हों या टेक्निकल फील्ड के लोग हों, उनको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जगह मिले। लिहाजा भारत कोशिश ये कर रहा है कि तमाम जो दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री है उनके साथ कोलैबोरेशन हो, एक प्लेटफॉर्म बने। आपको लगता है कि आप जैसे आर्टिस्ट, आप जैसे कलाकार अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुँचे, उसके लिए ये प्रयास बहुत अच्छा है? सर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए अब हम काफ़ी मूवीज़ हम भी पूरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में भी मूवीज़ बनना स्टार्ट हो और सब्सिडी मिलना शुरू हो जाए, ताकि हर आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से काम कर सके। लेकिन उस सब्सिडी के लिए एक इंडियन को बाहर जाना पड़ता है। तो अगर हमारी इंडिया में भी ये चीज़ें आएंगी, होना शुरू हो जाएंगी, सब्सिडी मिलना शुरू, क्यों नहीं आएंगे? बाहर से हमारे इंडिया में आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो उनका भी तो हौसला बढ़ रहा है, तो हमारा भी तो हौसला बढ़ना चाहिए ना। और कोलैबोरेशन का मतलब होता है इंडिया वर्ल्ड एक हो जाएगा। अब तक तो हम एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए हम कन्नड़ से हरियाणा का कोलैब कर देंगे तो इंडिया ही एक हुआ, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली इन चीज़ों को देखते हैं तो सर वर्ल्ड एक हो जाएगा। तो बहुत बेस्ट चीज़ है।
आपको लगता है ये कान भारत के लिए बहुत खास है? वो इसलिए क्योंकि जो फिल्म 4 फिल्में जिनको सिलेक्ट किया है इस कान में दिखाने, उसमें एक मणिपुरी फिल्म भी है। मणिपुरी फिल्म के कलाकार कंगबम तोम्बा रेड कारपेट पर पहले दिन थे। हरियाणा से आप आई हैं इस बार, तो रीजनल का जो पार्टिसिपेशन है, भारत की क्षेत्रीय चैनल भाषाओं का जो पार्टिसिपेशन, वो कान में दिख रहा है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, छोटा बड़ा कब क्या कर जाए। किसको पता था कि कांतारा फिल्म इतना काम करेगी या इतनी हिट हो जाएगी, जिसका डायरेक्टर भी वही है, आर्टिस्ट भी वही है और लिखी भी उन्होंने ही है। मुझे लगता है कि मुंह देख के टीका नहीं करना चाहिए। अच्छा आप सुंदर हो तो आइए हम आपका टीका कर देते हैं, वो वाला काम नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, वो कहाँ जा रहा है, उसने जो अचीव किया है उसके लिए वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है, वो उसके ऊपर छोड़ दो, उसको कब देना है वो ही देगा, बस आप मेहनत पे ध्यान दो। तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पहली बार जब पता चला आपको कि कान जाना है और कान के रेड कारपेट पर चलना है, क्या उस समय फीलिंग थी आपकी? बस मेरी यही फीलिंग थी यार, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ मेरी लैंग्वेज से। मुझे आज मैं यहाँ बैठी हूँ बिकॉज ऑफ हरियाणा, बिकॉज ऑफ ऑडियंस, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ माई टीम, और जिन लोगों ने भी हरियाणा के लिए काम किया है उनकी वजह से। तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि अगर मैं अकेली एक रेड कारपेट पे चल के पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो वो तो अंदर से शब्द ही नहीं है ना कि कैसा लगेगा। क्या कहेंगी आपके उन चाहने वालों को जिन्होंने अभी तो ट्विटर पर आपकी फ़ोटो देखी है, लेकिन अब आपको टीवी पे देखने वाले हैं, टीवी पे सुनने वाले रेड कारपेट के बाद? कुछ नहीं कहूँगी, बस शुक्रिया ही कह सकती हूँ, क्योंकि बनाया ही ये है। लेकिन मुझे आप लोगों के प्यार के आगे शुक्रिया शब्द बहुत कम लगता है। मुझे हमेशा ये लगता है यार, मैं जान भी दे दूँगी तो कम ही है। कैसे, मुझे लगता है ये कर्ज सा है जो मैं चुका नहीं पाऊँगी कभी, तो मैं बस थैंक यू कहूँगी, शुक्रिया। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सपना चौधरी हमारे साथ थी और यही कह रही हैं रेड कारपेट पर चलने के बाद कि हरियाणा ने जो उनको एक पहचान दी है, वो पहचान आज उनको कान तक लेकर आई है। लेकिन मेहनत उन्होंने की है और उस मेहनत की वजह से ही आज वो यहाँ तक पहुँची हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, कान। भारत की जिन फिल्मों को कान में प्रदर्शन के लिए चुना गया है, उसमें से एक फिल्म ईशानु भी है और उसके कलाकार कंगबम तोम्बा, मणिपुरी कलाकार, रेड कारपेट पर भी चले थे। फिल्म के प्रदर्शन के बाद कितने उत्साहित नजर आए और किस तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में एक क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का रुतबा बढ़ता है, ये वो बता रहे हैं। भारत की जिन फिल्मों को कान में प्रदर्शन के लिए चुना गया उनमें ईशानु है और ईशानु का प्रदर्शन जो है कान में शनिवार को हुआ है। कंगबम तोम्बा जो उस फिल्म के कलाकार हैं, मणिपुरी कलाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, ईशानु का प्रदर्शन जो है वो कान में हुआ है, कितना बड़ा दिन? It is very, very big day for me, and I think it is big days for all the artists if anybody work hard and so on. It is a very interesting one, and then I never think before that I will be in the red carpet in the classic film festival in Cannes. But fortunately, and I got a chance, and it is very, very interesting, and I like it very much. रीजनल लैंग्वेज की जो पावर है, क्या वो पूरी दुनिया ने देखी है इस फिल्म के जरिए कान में जब इसका प्रदर्शन हुआ? रीजनल लैंग्वेज फिल्म इज सुपर फिल्म. Films are the same thing. It does not depend on the language, but each work and each making of the style, and its theme, and it portrait is the most important thing. That is why regional language also be able to be in Cannes. क्या आपको लगता है अब दुनिया भर में भारत की जो रीजनल लैंग्वेज की जो फिल्में हैं, उनकी स्टोरीज हैं, उनकी कास्ट है, उनका टैलेंट है, वो एक अलग पहचान अब बना रहा है? Which is India, you know, is
comprising with so many different types of people, different states and different languages, costumes, caste, and habit, and all these are regional things. And from every part of the India, regional language films are making and producing each year, and there are so many very, very good ones, and it maybe comes one day in the country soon. इंडिया एक विविधताओं की कंट्री है, डाइवर्सिफाइड चीजें हैं यहाँ पर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर बात की जाए तो कई सारी लोकेशंस हैं भारत में। आप मणिपुर से आते हैं सर, और मणिपुर को लेकर भी इंडिया पवेलियन में मणिपुर, सिक्किम जैसी जगहों का भी रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। डू यू फील इंडिया दुनिया भर में अपने रीजन्स को प्रमोट कर रहा है, वहाँ की फिल्मों को, वहाँ की स्क्रिप्ट्स को, वहाँ के कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है? Yes. We are presenting Manipuri film here. We are presenting Indian film here at the same time. And each of the regional films and from different parts of India and can be in the country. Why not? If the subject is good, filmmaking style is weightage, has got enough power, and one should be there, and I hope. कंगबम तोम्बा जी हमारे साथ मौजूद थे, उस फिल्म में कलाकार हैं, मणिपुरी प्रसिद्ध कलाकार हैं, बहुत खुश हैं। और आज इस फिल्म के जरिए अगर कहें कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की कहानी, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की जो ताकत है वो भी देखने को मिली। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, कान। तो भारत एट कान में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे इस शो को लेकर आपके सामने और बताएंगे आपको कान की वो सभी खबरें जो बन रही हैं सुर्खियां, और साथ ही आपको बताएंगे वो तमाम हलचल जो इंडिया पवेलियन में हो रही है। तो आज के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।